سرکاری ہسپتالوں میں صحت کی سہولیات کا مشن وینٹیلیٹرز کی خریداری کے لیے 86 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ 50 کروڑ سے نئی سی ٹی اسکین مشین خریدی جائے گی۔ سروسز ہسپتال کی اصلاحات کے لیے 50 کروڑ مل گئے۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ حکومت نے شعبہ صحت کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی خریداری کے لیے 86 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں، جبکہ ٹیچنگ ہسپتالوں کے لیے سی ٹی اسکین مشین کی خریداری کے لیے بھی 50 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب سروسز ہسپتال کو 50 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ یہ گرانٹ سروسز ہسپتال کو بلڈنگ اور ری ویمپنگ کے لیے جاری کی گئی ہے۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ ناقص سہولیات، غیر معیاری علاج کی شکایات، حکومت نے صحت کارڈ سے کمائی کا دھندا بند کر دیا۔ عارضی لائسنس والے ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج بند۔ اسٹیٹ لائف کے پینل سے نکالنے کا فیصلہ، ہسپتالوں کو مستقل لائسنس کے لیے 30 نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ صحت کارڈ پر علاج کے لیے پرائیویٹ ہسپتالوں کا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے ریگولر لائسنس ہولڈر ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ ہیلتھ کیئر کمیشن سے عارضی لائسنس لینے والے پرائیویٹ ہسپتال انشورنس پینل سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے اسٹیٹ لائف کے پینل پر موجود پرائیویٹ ہسپتالوں کو ہیلتھ کیئر کمیشن سے ریگولر لائسنس لینے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ پرائیویٹ ہسپتالوں کو 30 نومبر تک پینل پر ریگولر لائسنس حاصل کرنے کی مہلت دی گئی۔ مہلت ختم ہونے پر ریگولر لائسنس نہ رکھنے والے پرائیویٹ ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج معالجے کی صورت بند کر دی جائے گی اور صحت کارڈ کے کلیم کلیئر نہیں کیے جائیں گے۔ جیلوں کی بجلی اور گیس بند ہونے کا خدشہ، دوسرے کوارٹر میں 2 ارب سے زائد کے فنڈز طلب کر لیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے صرف 54 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ بجلی اور گیس کی مد میں 1.25 ارب کے قریب ادائیگیاں زیر التوا ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کی 42 جیلوں میں 63,000 سے زائد قیدیوں کے کھانے کے لیے لاکھوں کی گیس استعمال ہوتی ہے، جبکہ ماہانہ کروڑوں روپے کی بجلی استعمال ہوتی ہے۔ بجلی اور گیس کی مد میں 1.25 ارب کے قریب ادائیگیاں زیر التوا ہیں۔ دوسرے کوارٹر میں 2 ارب سے زائد کے فنڈز مانگے گئے تھے۔ محکمہ خزانہ نے 42 جیلوں کے لیے صرف 54 لاکھ کے فنڈز جاری کیے۔ بجلی اور گیس فراہم کرنے والے اداروں نے کنیکشن منقطع کرنے کے حوالے سے بار بار آگاہ کیا ہے۔ اعلیٰ افسران کی درخواست پر تاحال سپلائی جاری ہے۔ دونوں اداروں کی ادائیگیاں نہ کی گئیں تو گیس اور بجلی منقطع ہونے کا خدشہ ہے۔ گلبرگ میں ای او بی آئی آفس نارتھ کے باہر پینشنرز کا احتجاج ختم۔ ڈی جی مراتب علی ڈوگر سے مظاہرین کے مذاکرات، بیٹی کی شادی، بچوں کی تعلیم، بیواؤں کی پینشن اور دیگر معاملات سامنے رکھے۔ مذاکراتی کمیٹی کے مطابق ڈی جی نے تمام مطالبات تسلیم کر لیے۔ پینشن کی عدم ادائیگی، غیر شادی شدہ بیٹیوں، پینشنرز کے معذور بچوں کے فنڈز، تعلیم اور ڈیتھ فنڈز کے اجرا میں تاخیری حربوں پر پینشنرز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ٹریڈ یونین ایکشن کمیٹی اور پاکستان مزدور محاذ کے زیر انتظام گلبرگ میں ڈائریکٹر جنرل ای او بی آئی نارتھ کے آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شریک پینشنرز نے مطالبہ کیا کہ ای او بی آئی ایکٹ 1976 پر عمل درآمد کرتے ہوئے پینشن کی ادائیگی کی جائے، غیر شادی شدہ بیٹیوں، بچوں کی تعلیم، ڈیتھ فنڈز کا اجرا کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے سالوں اپنی تنخواہوں میں کٹوتیاں کروائی ہیں، ہمارا ہی پیسہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، ہزاروں ملازمین کو فیڈریشن میں رجسٹرڈ ہی نہیں کروایا گیا، ان کا پیسہ کہاں گیا، حساب لیا جائے۔ پچھلے 5 سال سے 35,000 جو اپلیکیشنز ہیں ورکر ویلفیئر بورڈ اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر پینڈنگ کا شکار ہیں، جس میں ڈیتھ گرانٹ، میرج گرانٹ اور ایجوکیشن گرانٹ کی درخواستیں ہیں۔ ہمارے بھی مطالبات جو ہیں وہ ہم نے ای او بی آئی کے آگے رکھے ہیں کہ ہماری جو کم از کم اجرت ہے 32,000 روپے، اس کے مطابق ہماری پینشن کی جائے، جو کہ اس وقت 10,000 روپے ہے، اور یہ 3-4 سال کے بعد یہ بڑھائی گئی ہے 8,500 سے 10,000 روپے۔ ڈی جی ای او بی آئی نارتھ اور مظاہرین کی 8 رکنی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ ڈی جی مراتب علی ڈوگر نے مظاہرین کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے حل کے لیے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ قانون یہ ہو گیا کہ جو کنٹریبیوشن ہے ورکر کی آئے گی تو پینشن دیں گے، جبکہ قانون یہ نہیں تھا، اب انہوں نے خود سے بنا لیا۔ ہمارا تو لائے عمل یہی ہے کہ ہم مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم بڑے پیمانے پہ مظاہرہ کریں گے۔ ڈی جی ای او بی آئی نارتھ مراتب علی ڈوگر کی طرف سے مسائل کے حل کی یقین دہانی کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 42۔ گرین ٹاؤن شیر چوک میں بجلی کے لٹکتے تار مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ شکایات کے باوجود لیسکو حکام نے آنکھیں بند کری۔ نیو ہسپتال روڈ اور حسن چوک شام نگر کی سڑک عرصہ دراز سے زب و حالی کا شکار ہے۔ ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی سے راہگیر ذہنی مریض بن گئے۔
शेर चौक में बिजली के लटकते तार मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। इलाके में खंभों की किल्लत के बायस बिजली के तार बांस के सहारे लटक रहे हैं। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बिजली के तार बांसों के सहारे बुलंद करके बांध दिए हैं। अहले इलाका के मुताबिक अरसे दराज से बिजली के तार लटके हुए हैं। हमारे बच्चे महफूज नहीं। कई बार जानवर तारों की जद में आकर मौत के घाट उतर चुके हैं। मेयो अस्पताल रोड गुज़िश्ता 3 साल से शदीद टूट फूट का शिकार है। लेडी एचिसन अस्पताल और मेयो अस्पताल से मुंसलिक सड़क से राहगीरों का पैदल चलना मुहाल है। इलाका मकीनों का मौक़िफ़ है कि अस्पताल जाने वाले मरीजों और उनके अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इंतजामिया को बारहा आगाह करने के बावजूद सड़क बनवाई न जा सकी। हसन चौक शाम नगर की सड़क भी 3 साल से ज़बूहाली का शिकार है। सड़क पर गड्ढे होने से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। सड़क वन वे होने और उसके गिर्द तजावजात से हादसात भी मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि 3 साल से सड़क खराब है, लेकिन इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही। लिटल रोड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर सफाई के नाकिस इंतजाम, जबकि टूटियां भी गायब हैं। रिहायशियों के लिए नस्ब किया गया फिल्ट्रेशन प्लांट नशेइयों की आमाजगाह बन चुका है। पीने के लिए दूर दराज से साफ पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान, बताइएगा। बिल्कुल, लिटल रोड का ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि ना सिर्फ ज़बूहाली का शिकार है, बल्कि ये जो है नशेइयों की आमाजगाह भी बन चुका है। यहाँ पे टूटियाँ होनी चाहिए थी, यहाँ पे साफ़ सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए था। शहरियों के लिए एक महज़ब निज़ाम होना चाहिए था जिसके तहत वो यहाँ पे आके साफ़ पानी लेके जा सकते हैं अपने और अपने बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें उल्ट हैं। यहाँ पे नशेई जो है वो उन्होंने इस जगह को अपनी आमाजगाह बनाया हुआ है। वो यहाँ पे सोते हैं और यहाँ इस जगह को यूज़ करते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ टूटियाँ भी नहीं हैं यहाँ पे साफ़ पानी के लिए, और दूसरे जो सफाई सुथराई के इंतजाम होते हैं वो भी नहीं किए गए। इंतजामिया की शदीद नाअहली है कि एक चीज़ जो अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए बनाई गई थी वो अब खंडर का मंजर पेश करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो इलाका मकीन है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि साफ़ पानी नहीं होता है, जिसकी वजह से दूर दराज से हम पानी लेके आते हैं, ख़रीद कर पानी पीने पर भी वो मजबूर हैं। जबकि यहाँ पे इस इलाके में जब ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था तो उन्हें बहुत सहूलत हुई थी, लेकिन अब उन्हें शदीद मुश्किल का सामना है। उनका कहना है कि बच्चे जो है गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हो जाते हैं और उन्हें भी बेशतर मुश्किल का सामना रहता है। अवाम से इंतज़ामिया के यही मुतालबा है कि वो चाहते हैं कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को दोबारा बहाल किया जाए और यहाँ पे टूटियाँ लगाई जाएँ, यहाँ पे साफ़ सफाई का निज़ाम जो है वो दोबारा लाया जाए, ताकि यहाँ से वो जो है अपने घरों में जो पानी है वो मुनासिब तरीके से लेके जा सके। दूर से जब वो पानी लेके आते हैं तो उन्हें एक तो पानी ख़रीद के लेके आना पड़ता है, दूसरा। जी ठीक है अफशान, बहुत शुक्रिया आपका। शमा गरतवा चौक पर मेट्रो बस ट्रैक पर लगे जंगले टूट फूट का शिकार। मेट्रो बस के हिफाजती जंगले मनशियात के आदी अफराद के नशे का जरिया बन गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं साजिद अली से। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। मेट्रो बस के नीचे लगे जो हिफाजती जंगले हैं मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। नशे के आदी अफराद की जानिब से ये जंगले जो हैं इनको तोड़ा जाता है और उसके बाद इनको अपना नशा पूरा करने के लिए बेच दिया जाता है। मैं इस वक्त कटवा चौक के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अंडर ये जो जंगले आते हैं, जो मेट्रो बस ट्रैक के नीचे आते हैं, स्टेशन के ऊपर जंगले हैं, ये भी महफूज नहीं है। उसके साथ ही साथ अगर फिरोजपुर रोड पर मेट्रो बस ट्रैक के नीचे जाएं तो एक हिफाजती जंगला जो है लगाया गया है, जो कि दोनों सड़कों को दोनों तरफ की सड़क को डिवाइड करता है। ये जंगला जो है ये भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। इस तरह से ये जंगलों की टूट फूट का सिलसिला शुरू होता है। इस हवाले से हमने यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से भी बात की। उनका ये कहना था कि मंशियात के आदी अफराद की जानिब से इन जंगलों को रात गए तोड़ा जाता है, उसके बाद उनको सुबह के वक्त बेच दिया जाता है, जिसके बाद ये जंगले जो है उनकी हालत दिन ब दिन खस्ता तरीन होती जा रही है। अभी कटवा चौक पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन नुमान आपको दिखा सकें, यहाँ पर भी जंगला जो है टूटा हुआ है और इस जंगले की स्पेस को कवर करने के लिए तारें लगाई गई हैं, जो कि नाकाफी और यहाँ से गुजर कर अंदर जाना रात की तारीकी में, और उसके बाद मेट्रो बस का जो स्टेशन है यहाँ पर लगी जो भी तनसीबात है, इनको नुकसान पहुँचाना या इनकी चोरी करना इंतहाई आसान जो है हो चुका है। इस हवाले से मास ट्रांजिट अथॉरिटी और जो मुतल्लिका इंतजामिया ये बिल्कुल लाइल्म दिखाई देती है। ठीक है साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी गैस स्टेशन का धंधा अरोज पर। गुंजान आबाद इलाकों में बगैर हिफाजती इक़दामात के गैर कानूनी गैस की फरोख्त की जाने लगी। मजीद जानेंगे उमैर अफजल से। जी उमैर, बताइएगा। यहाँ पर बिल्कुल शरेआम जो है वो मौत बांटने का जो है वो अमल जारी है। यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गैर मयारी जो है वो गैस सिलेंडर्स का जो है वो धंधा अरूज पर है। यहाँ पर बगैर किसी सेफ्टी के इक़दामात के जो है वो गैस फिलिंग का जो है वो अमल जारी है। यहाँ पर LPG और
सिलेंडरों में रिक्शा के जो सिलेंडर्स हैं वहाँ पर जो है वो गैस भरने का अमल जारी है। यहाँ पर कोई भी सेफ्टी के जो है वो इकदाम नहीं किए गए। खुलेआम सरेआम रोड पर जो है वो आबादी के संगम में ये जो है वो मौत का खेल खेला जा रहा है। यहाँ पर जब हमने इनसे बात करना चाहिए तो वो दुकानदार हज़रात का कहना है कि ये हमारा कारोबार है, आप इसमें मुदाखलत न करें। हालांकि वो लोग यहाँ से जो है वो अपना कारोबार छोड़कर जो है वो भाग गए हैं। उनका कहना है कि आप हमारे काम में मुदाखलत न करें और उन्होंने जो है हमें संगीन नताइज की धमकियाँ भी यहाँ पर दी हैं। यहाँ पर आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि गैस का जो कीमत है वो 260 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। यहाँ पर जो है वो उसकी गिरा फरोशी भी अरूज पर है और दूसरी जानिब नाकिस क्वालिटी की जो गैस है बगैर किसी सेफ्टी के इक़दाम के जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिससे जो है वो शहरियों को ख़तरात लाक है। इंतज़ामिया से जो है वो शहरियों का ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस तरह के जो इलीगल गैस स्टेशन हैं उनका जो है सफाया किया जाए। मेन शाहराहों पर आबादी के संगम में मुख्तलिफ बस्तियों में जो गैस स्टेशन बने गए हैं इलीगल, उनका जो है वो खात्मा करवाया जाए ताकि जो है वो खतरात के जो लाहक हैं हमें उनसे जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके। जी उमैर अफजल, बहुत शुक्रिया आपका। पटवारियों की सुनी गई। महकमा माल ने अफसरान के ग्रेड अप करने का फैसला कर लिया है। असम्बली मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भिजवा दी गई है। माल ने निचली सतह पर काम करने वाले मुलाजमीन को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से पटवारी से लेकर तहसीलदार तक के ग्रेड अप किए जा रहे हैं। पटवारी का ग्रेड 9 से बढ़ाकर 11 कर दिया जाएगा। कानून गो का ग्रेड 11 से बढ़ाकर 14 करने का फैसला किया गया, जबकि नायब तहसीलदार का ग्रेड 14 से बढ़ाकर 16 कर दिया जाएगा। इसी तरह तहसीलदार का ग्रेड भी 16 से 17 करने का फैसला कर लिया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ग्रेड अप करने की समरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को भिजवा दी है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद मज़कूरा अफसरान के ग्रेड अप कर दिए जाए। लाहौर के 5 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रो तबादले। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने अहकाम जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सब इंस्पेक्टर सैयद अली नकी शाह जनरल ड्यूटी थाना गुलशन रावी से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, ग्वाल मंडी सब इंस्पेक्टर अली रजा थाना चौंक इन्वेस्टिगेशन से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना लोहारी गेट, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिद्दीक थाना इस्लामपुरा ऑपरेशन से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन चौंक तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह इंस्पेक्टर राना सोहेल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन चौंक से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंसी और सब इंस्पेक्टर मोइन इलियास जनरल ड्यूटी बनामा से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भाटी गेट तैनात कर दिए गए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ने तमाम अफसरान को नई तैनाती के मुकाम पर फौरी रिपोर्ट करने की हदायत की है। शादी ब्याह तकरीबात पर मयारी और महफूज खुराक की फ्राहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों का पंजाब समेत लाहौर डिवीजन में शादी हॉल्स और मार्केटों की चेकिंग, नाकिस इंतजामात पर भारी जुर्माने और मामूली नाकिस सूरत हाल पर इस्लाही नोटिस जारी कर दिए गए। जबकि फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से पंजाब समेत लाहौर डिवीजन में 606 से ज़ायद शादी हॉल्स और मार्केटों की चेकिंग की गई, जिसके नतीजे में नाकिस इंतजामात पर 94 को जुर्माने आए थे। इसके अलावा मामूली निकाइस पर 457 मैरिज हॉल्स और मार्केटों को इस्लाही नोटिस जारी। इस हवाले से DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि लाहौर डिवीजन में 606 समेत मुख्तलिफ शहरों में मैरिज हॉल्स की चेकिंग की गई और खाने की तैयारी में ज़ायदुल मियाद अज्जा पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। शादी हॉल्स और मार्केटों के मालिकान को पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत भी की गई है। चेयरमैन PTI के मौक़िफ़ से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। एस्टेब्लिशमेंट को साथ न देने पर हदफ़े तनकीद बनाया गया। अदम एतमाद के बाद लड़ाई शुरू की गई। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले खावर मानिका ने दुरुस्त बातें की, जिसने तहकीक करनी है कर ले। बिलावल भुट्टो बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। ज़ुबान या उसी अंदाज से जवाब जो है वो नहीं देना चाहते और हमारी कोशिश नहीं, हमारी ये पॉलिसी है कि हम इस किस्म की तलखियाँ जो हैं उनको कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इलेक्शन के बाद अगर आपने इस मुल्क को बहरान से निकालना है, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, तो फिर आपको सबको साथ लेके चलना होगा। पीपल्स पार्टी जो है अगर वो पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहती है, जो कि लड़ना चाहती है, जो कि लड़ेगी, तो यहाँ पे फिर उन्हें हमारे मुखालिफ ही बयानियाँ बनाना होगा। ये उनकी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है। अगर बिलावल साहब जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो जब हमारा मुखालिफ वोट उन्होंने अट्रैक्ट करना है तो वो फिर हमें हमारी तारीफ़ें करके तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते।